So Faizan has got basically a networking background and he's been in this industry for quite a long time now. He's CCIE and he worked for various multinational companies. Basically ये topic is quite relevant to that कि इसमें हम लोग firewalls, VPNs and all that will discuss that. So, as I promised, there would be somebody who is already working in the industry, would be giving you more sort of in-depth knowledge about it. So, yeah, welcome, Fazan. And I think I'm gonna start with you then, right? What I was saying, Asif, maybe what we can do today. Today, I'll just give a bit of sort of an introduction about myself. I will also run through the basics of what firewalls and VPNs are and why they're used. Yeah, that's fine, Fazan. That would be great because overview कर लेते हैं, and then when you'll have time, then you can have a proper sort of a session on that on the networking concepts. Because networking was a bit boring and rough, sorry to say, but ये एक है problem कि इसको थोड़ा सा understand करने में it would take some time and obviously practice, which is very, I would say, mandatory thing. तो वो फिर हम रख लेंगे, but yeah, overview would be good. That's fine, no problem. So yeah. Shall we move on? Okay. Okay, sounds good then. And just a question: is this interactive? Because from my perspective, right, if any of them have any questions, any like students, I'm more than happy to maybe if you want to raise your hand or something, and at any point in time you have any questions, please feel free. We don't need to have a Q&A session at the end because it's better if you ask questions during the while I'm running through things. So I think the two things that I've been asked to cover. One is firewalls, and the other one is VPNs. Even though the two of them they seem to be interlinked, but not necessarily they are. Let's start with the I think the first concept I think in networking, the most important concept, right, is IP. Again, think of it as from a practical scenario. जब आप किसी भी इंसान से बात करते हैं, ठीक है, आपकी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट्स अ लैंग्वेज. नॉर्मली अगर आप पाकिस्तान में आप उर्दू में बात करेंगे, पंजाबी में बात करेंगे, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क में है, जिस मुल्क की भी जबान है ना, यू ऑलवेज यूज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. यहाँ तक कि जब जानवर एक दूसरे से बात करते हैं, दे हैव सॉर्ट ऑफ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इसी तरह इन द वर्ल्ड ऑफ आईटी, अगर दो मशीन्स ने आपस में बात करनी है, they need to speak on a certain mode of communication, और वो जो इंसानों की जबान में हम यूज करते हैं वर्ड लैंग्वेज, मशीन्स की दुनिया में, आईटी की दुनिया में वही चीज आपकी प्रोटोकॉल होती है. तो अगर आप कहीं पे पढ़े ना फॉर एग्जांपल के सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स अ वे टू कम्युनिकेट बिटवीन सर्टेन डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल आप गए होंगे वहां पे कभी काउंटर स्ट्राइक खेलने के लिए, गेमिंग गए होंगे, आपका आप यूनिवर्सिटी वगैरह में अपनी मशीन्स यूज करते होंगे, राइट. तो अगर दो मशीन्स को आपस में बात करना है, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है. दो मशीन्स को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एक केबल से, ठीक है, या किसी स्विच के थ्रू, और वो आपस में दे स्पीक थ्रू अ प्रोटोकॉल. और एक वो जो प्रोटोकॉल है वो नेटवर्किंग की दुनिया में, राइट, इट्स द टीसीपी आईपी, जो कि लेयर 7 आपका ओएसआई लेयर होता है. दैट्स हाउ दे स्पीक. और जो ओएसआई लेयर है वो उसमें आपका 7 लेयर्स होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेस, जो कि आपका फिजिकल लेयर होता है जिसमें आपकी केबल्स होती हैं, राइट. देन देयर इज अनदर लेयर सिट्स ऑन टॉप ऑफ द फिजिकल, वो आपका मैक एड्रेस होता है. मैक एड्रेस के ऊपर ना देन यू हैव द आईपी एड्रेस. आपने बहुत नाम सुना होगा, IPv4, IPv6, ठीक है, आईपी कम्युनिकेशन. दैट सिट्स ऑन लेयर 3. उसके बाद फिर आपका लेयर 4 होता है, टीसीपी और यूडीपी. इसको इस तरह सोचें कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक पैकेट आता है, ठीक है, मशीन ए जो है ना, वो मशीन बी को अगर पैकेट सेंड करता है, जब मशीन बी के पास पैकेट आता है तो वो स्टार्ट करता है, मैंने कहा था 7 लेयर होती हैं, वो स्टार्ट करता है लेयर नंबर 7 से उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. तो थोड़ा सा मैं आपको लेयर्स को ओवरव्यू दे देता हूँ. एज मैंने कहा था कि लेयर जो आपका फर्स्ट लेयर है
दैट इज द फिजिकल लेयर जो केबल्स है। फिर आपका मैक एड्रेस आता है। हर डिवाइस, अगर आपका आईफोन है या कोई भी मोबाइल है, हर डिवाइस का अपना एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। जैसा आपका घर है, राइट, हर घर का एक एड्रेस होता है, इस तरह पोस्टमैन आपके पास पहुंचता है। इसी तरह हर डिवाइस का एक फिक्स एड्रेस होता है और वो मैक एड्रेस होता है। ठीक है। अगर आपने अब आईफोन को भी देखें तो उसके उसके अंदर भी हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होगा। फिर आते हैं आप, जो लेयर 3 है वो आईपी लेयर होता है। और जो लेयर 3 आईपी लेयर है वो फिक्स नहीं होता। वो हर डिवाइस को आप या तो स्टैटिकली असाइन कर सकते हैं या डायनामिकली असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने मशीन पे जाते हैं, अपने लैपटॉप पे जाते हैं या पीसी पे जाते हैं, उस पे अगर आप गौर करें, अगर आप मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और आईपी कॉन्फ़िग लिखें या आप विंडोज की प्रॉपर्टीज में जाएं, तो उसके अंदर आपका IPv4 एक एड्रेस होता है और फिर वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि उसको आप स्टैटिकली डिफाइन करें या उसको आप DHCP के थ्रू डिफाइन कराएं। नॉर्मली हमारे जो घर के मोडेम्स होते हैं वो सारे के सारे दे आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एज DHCP सर्वर्स फॉर ईज ऑफ लाइफ, ताकि आप सिंपली कुछ भी नहीं करते, अपना लैपटॉप करते हैं, आप केबल कनेक्ट करते हैं या वाईफाई कनेक्ट करते हैं और उसको आईपी असाइन हो जाता है। फिर लेयर नंबर 4, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट हो, आपने नाम सुना TCP और UDP का। ओह, थैंक यू आसिफ फॉर दैट। ठीक है, जो लेयर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है TCP, नॉर्मली आप इस तरह सोचें, अगर आपको, आप जब जाते हैं पोस्टमैन के पास, तो पोस्टमैन के पास आप कहते हैं मुझे ये जो आपका पार्सल है ये मुझे किसी डेस्टिनेशन पे पोस्ट करना है। पोस्टमैन आपसे ये पूछता है कि आपको रिकॉर्डेड डिलीवरी चाहिए या आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। TCP का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है रिकॉर्डेड डिलीवरी, कि अगर फॉर एग्जांपल आप पैकेज दूसरे एंड पे सेंड करते हैं तो वो आपको एक्नॉलेज करता है। UDP के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। अब इसके UDP का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है, और सेम फॉर TCP। क्योंकि अगर आप एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो नेटवर्क पे आपका ट्रैफिक कम होता है, राइट। आप सिर्फ सेंड कर रहे हैं, अब दूसरे एंड पे पहुंचे ना पहुंचे, आई डोंट केयर। जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है जहां पे डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसके लिए आप कभी भी यूडीपी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन की, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, अगर दूसरे अकाउंट में नहीं पहुंचे और एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो वो मेजर इश्यू है। ठीक है। तो इन जगहों पे देन यू ऑलवेज यूज TCP। लेकिन ऑन टॉप ऑफ द ट्रांजैक्शंस में फिर आप एप्लीकेशन लेवल पे भी एक्नॉलेजमेंट करते हैं, वो और सिक्योर करने के लिए। UDP का एक बहुत बड़ी एग्जांपल वॉइस है। जब आप फोन पे बात करते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूँ किसी, लेट्स से एग्जांपल में आसिफ को कॉल करता हूँ मैं, राइट। अगर आसिफ को आवाज नहीं जा रही, आसिफ वहां से क्या कहेगा, मुझे आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो, ठीक है, कैन यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ। तो इसीलिए जैसे वॉइस हो गया और इस तरह के सर्टेन प्रोटोकॉल्स में जहाँ पे डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहां पे आप UDP यूज करते हैं क्योंकि उसका ओवरहेड कम होता है। इसी तरह फिर आपका सेशन लेयर है जो सेशंस को एस्टेब्लिश और ब्रेक करता है। ठीक है। फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर मैं कहूंगा अभी फिलहाल आप उसको, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मली आपका, आप उसको देखते भी नहीं नॉर्मल लाइफ में, वो मेनली प्रोटोकॉल्स के अंदर ही फॉर इंटरनल वर्किंग के लिए होता है। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, उस पॉइंट पे एप्लीकेशन लेयर इज क्वाइट क्रूशल। जो लास्ट बिट एप्लीकेशन लेयर है आपका, वहां पे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप अभी जूम की कॉल पे हैं, जूम यूज कर रहे हैं, ये जितनी एप्लीकेशंस हैं ये सारी बैठती हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं कि वो खाली एप्लीकेशन यूज करती हैं। अगर कोई आपसे ये कहना है कोई एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपने पीसी पे चला रहे हैं, तो एट ऑल टाइम्स वो जो एप्लीकेशन है वो 7 लेयर सारी की सारी यूज कर रही है एट द सेम टाइम। क्योंकि अब मिसाल लें, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है अपना फोन आप उठाते हैं, ठीक है, और आप किसी को व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, जब आप कॉल करेंगे जो पहली चीज होगी, आपके फोन को किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ठीक है, एप्लीकेशन है तो बाद में आएगा, लेकिन पहले आपको जो पैकेट्स आपके फोन से निकले हैं वो दूसरे एंड पे, दे नीड डेस्टिनेशन। ये वही कहानी है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आप ये लिफाफा पकड़े और ये आप जो है ना जाके आपका मंसूर भाई को पकड़ा दें, आपका पहला सवाल होगा मंसूर रहता कहाँ है, मैं कैसे पहुंचूंगा मंसूर के पास। उस पॉइंट पे आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है IP एड्रेस का। ठीक है।
तो आपका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, अब यहाँ पे अब दो कॉन्सेप्ट है आईपी के। एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट कहते ही इसलिए है कि वो आपके घर के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर यूज होता है। आप ये सोचें, अगर आप अपने घर के अंदर हैं, ठीक है, आपके वाले साहब से कहते हैं यार ये जो चीजें उस कमरे में आकर रख दो, राइट। अब यहाँ पे उस कमरे में रखने के लिए आपको अपने इंटरनल नेटवर्क का सब कुछ पता है, आपको बाहर की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और ना ही पड़ोसी को पता होगा कि आपके कमरे में क्या रखा हुआ है। वो कंप्लीटली आपका इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट है। उन पॉइंट के लिए आप जो है ना वो प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अब आपके वाले साहब कहते हैं कि ये जो यार ये जो चीज तुमने रखी है वहां पे, ये चीज जो है ना जाके ये आपके मंसूर को कहते हो, अब आप इंस्टेंटली कहेंगे यार डैड मुझे ना वो मंसूर ये कहाँ रहते हैं, मुझे उनका एड्रेस चाहिए। तो इसी तरह जब आप अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेटवर्क से बाहर निकलते हैं, तो आपको प्राइवेट आईपी से यू नीड टू स्विच टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस जिसको सब समझते हैं। क्योंकि अगर आप जाके किसी से कहते हैं यार आपका ये मेरा एड्रेस है, एड्रेस लोगों को पता होगा लेकिन उस एड्रेस पे कितने कमरे हैं और उन कमरों में क्या है, ये नॉलेज बाहर वाले को नहीं होगी। ये आपका इंटरनल नेटवर्क है, आपका इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप गए, आप जो है ना आपके डैड ने आपको एड्रेस दिया कि मंसूर यार इस एड्रेस पे रहता है और ये जो लिफाफा है ये आप उसको जाके दे आए। आप अपने घर से निकले, आपके पास एड्रेस है जो आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। आप लेट्स से नेक्स्ट गली मंसूर मंसूर साहब रहते हैं, आप नेक्स्ट गली के अंदर गए और आपने गेट पे जाके खटका किया, ठीक है। मंसूर साहब ने वहां पे आपसे लिफाफा रिसीव किया। अब ये मंसूर साहब इस एग्जांपल में ये दूसरी मशीन है, ठीक है। उसने लिफाफा पकड़ा और आपने अब लिफाफा खोलना शुरू किया, ठीक है। अब जब दूसरे एंड पे पैकेट पहुंचेगा दूसरी मशीन के पास, व्हाट्सएप पे आपने जो कॉल की है, राइट, वो जो एप्लीकेशन लेयर है, वो जो सारा डेटा आपने उसको भेजा है, वो उसको स्टडी करेगा। और एक बात और याद रखेगा, जब आप किसी को पैकेट भेजते हैं, ठीक है, उस पैकेट के अंदर आपका एक तो टीसीपी आईपी, ये जो ओएसआई लेयर है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। एट द सेम टाइम इसके साथ एक पेलोड होगा। इस तरह समझे जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, फ्रंट पे आपका ड्राइवर बैठा हुआ है जो आपको डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है, और पीछे जो पूरा ट्रेलर है उसमें आपका पेलोड बैठा हुआ है जो सारा डेटा है आपका। अब जब मंसूर साहब के पास आपका व्हाट्सएप का जो है वो मैसेज पहुंचा है, ठीक है, तो वो जो पेलोड है उसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने उसको मैसेज भेजा है, उस लिफाफा कह लें, व्हाट्सएप कह लें, या जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो पेलोड के अंदर होगा। तो पहले पेलोड तक पहुंचते पहुंचते पहले मंसूर साहब वो जो आईपी के पैकेट्स हैं उनको खोलेंगे, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये पैकेट कहाँ से आया है, उसका आपका जो आईपी एड्रेस क्या है, और उसमें एप्लीकेशन लेयर पे क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो पेलोड देखेगा, डेटा देखेगा। अब लेट्स से अब मंसूर साहब के पास डेटा पहुंच गया है। अब मंसूर साहब ने अब उसको रिप्लाई भी करना होगा, जैसे व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज करते हैं कि यार तुम आज आ रहे हो खेलने के लिए, राइट। देन ऑब्वियसली आप वहां पे उसके रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो आपका जो सोर्स है जहां से आप आ रहे हैं, जैसे लिफाफे पे होता है ना कि आपका जो आप लिखते हैं टू एंड फ्रॉम। जो फ्रॉम है वो उस पॉइंट पे वो जो मशीन है वो रजिस्टर करती है, और फिर it can send the information back to where it came from। यहाँ पे आईपी पे कोई कोई सवालात कि जो कम्युनिकेशन है, और ये बहुत बेसिक बेसिक लेवल है आपका, प्लीज कोई। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं, कॉन्सेप्ट खैर बहुत सारे हैं लेकिन I'll try to stick to firewalls and VPNs। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, अब जैसे मिसाल दी थी मैंने, राइट, आपके इंटरनल नेटवर्क है जो आपका घर है, ठीक है। अब आप नॉर्मली अपने घर को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में जो हालात है माशाल्लाह, उसमें आपको सिक्योर करने के लिए आप गेट्स लगाते हैं, ठीक है, आप उसमें जालियां लगाते हैं। अगर बहुत है तो आपने आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, ठीक है, बाहर। ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं कि आपने अपने घर को सिक्योर करने के लिए आपने मेजर्स लिए हैं। इसी तरह नेटवर्क की दुनिया के अंदर, ठीक है, हम सेम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यूज करते हैं।
आप अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, अब जाहिर सा गेट तो नहीं लगाएंगे आप, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आप वहां पे आप फायरवॉल्स इंस्टॉल करते हैं। आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना कि लेयर टू स्विचेस आप यूज कर रहे हैं अपने लैन पे, वो जो कॉन्सेप्ट है इन रियलिटी दुनिया में, पाकिस्तान में शायद थोड़ा बहुत यूज होता हो, लेकिन अब दुनिया में वो कॉन्सेप्ट ना दैट्स गॉन। लेयर टू स्विचेस आर अ बिट ऑफ अ लेगेसी कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है। तो हर जगह अब क्या यूज होते हैं, अब हर जगह लेयर थ्री स्विचेस यूज होते हैं। अगर आप बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि फीचर्स रूटर्स पे डिफरेंट होंगे, ठीक है। रूटर्स आर मोर डिजाइंड के आपके आईपीसेक वीपीएन टर्मिनेट हो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो एच पे होते हैं, ठीक है। स्विचेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट फास्ट स्विचिंग, और आजकल स्विचेस में आते हैं एसिक्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि स्विचिंग सॉफ्टवेयर में हो रही होती थी, क्योंकि वो स्लो होती है। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ये होता है, अगर आपका हर पैकेट अगर सीपीयू के पास जा रहा है और वहां से वापसी आ रहा है, उसमें आपकी लेटेंसी आ जाती है। और स्पेशली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहां पे लेटेंसी इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, क्योंकि अगर आपका स्टॉक मार्केट चल रहा है, ठीक है, अगर आपका जो कंपेटिटर है उसके पास आपसे पहले डेटा आ रहा है, और वो अपना जो आपके जो एक्सचेंज में, ठीक है, वो अपनी स्टॉक पहले फिक्स कर लेता है आपसे, बेशक मिली सेकेंड से हो, यू हैव लॉस्ट मिलियन पाउंड्स देयर, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना लेटेंसी के लिए, स्पेसिफिक मार्केट्स में ये एक्सट्रीमली अटली क्रूशियल होते हैं। और यही वजह है कि आप जो है ना सर्टन, अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग एनवायरमेंट्स के अंदर, उसमें नॉर्मल स्विचेस यूज नहीं होते, उसमें स्पेसिफिक मॉडल के स्विचेस यूज होते हैं, जहाँ पे लेटेंसी बहुत बहुत कम होती है। चाहे वो सिस्को हो, अरिस्टा हो, जुनिपर हो, ये जितने भी वेंडर्स हैं, ये सारे के सारे स्पेसिफिक मार्केट्स के लिए भी स्विचेस बनाते हैं। अब गोइंग बैक टू द डिफरेंस, डिफरेंस जो है ना मेनली फीचर्स का है, लेकिन इन रियलिटी आजकल आप और करेंगे कि स्विचेस जो है ना, सर्टेन स्विचेस वो भी वीपीएन्स टर्मिनेट कर सकते हैं, राइट, और सर्टेन रूटर्स भी कर सकते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है आजकल एसडी वैन का, ठीक है, जो कि आजकल मार्केट में वो बहुत इन है। जो एसडी वैन है वो नॉर्मली स्पेशली रूटर्स पे चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्को अभी वो स्विचेस पे वो फीचर्स नहीं दिए हैं। तो आज के जमाने में मैं कहूंगा लेयर थ्री स्विच और रूटर के बीच में द मेन डिफरेंस, ठीक है, वो फीचर्स का है। और स्विचेस के अंदर क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक एसिक्स इंस्टॉल करते हैं फॉर फास्ट स्विचिंग, ताकि लेटेंसी को रिड्यूस किया जाए। दैट्स द मेन डिफरेंस। अदरवाइज फ्रेंकली स्पीकिंग, आज से 10 साल पहले, अगर मैं 15 साल पहले मैंने जब नेटवर्किंग स्टार्ट की थी, ठीक है, उस जमाने में जो आपने कहा है ना, वो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट था कि लेयर टू स्विचेस आपके नेटवर्क में होते थे, आपके एज पे रूटर्स होते थे, और उन पे आपके जो इंटरनेट के लिंक्स हैं या ब्रॉडबैंड के लिंक्स, जो भी टर्मिनेशन होती थी वो उन पे हुआ करती थी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट अब बहुत चेंज हो गया है, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, इज दैट अ लेयर थ्री स्विच राइट एंड अ रूटर, except for the difference in features, there isn't a massive difference nowadays. They can pretty much both do the same things. अगर आपने थोड़ा सा इसको और स्टडी करना है, सिंपली गो सिस्को की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, और उस पे जाके आप जो उनकी प्रोडक्ट लाइंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस फील्ड में आ रहे हैं आप, राइट, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ना वेबसाइट पे जाके स्टडी भी किया करें आके, उनकी जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उनके ना फीचर्स जो है ना, वो देखें जाके क्या क्या फीचर्स ऑफर करते हैं। आप you'll be surprised कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स वो दोनों ऑफर कर रहे होते हैं। आई थिंक द नेक्स्ट वन नाउ इज फायरवॉल्स। अब फायरवॉल में, एक बेसिक फायरवॉल, मैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात नहीं कर रहा, एक बेसिक फायरवॉल में और आपका रूटर में क्या डिफरेंस है, रूटर्स के अंदर, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, रूटर्स में आप क्या करते हैं कि आप एसीएल बनाते हैं, ठीक है, जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, और आप ये कहते हैं कि बाहर का ट्रैफिक अंदर नहीं आ सकता, फॉर एग्जांपल, राइट। लेकिन रूटर्स में एक जो डिफरेंस है और फायरवॉल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये मैं बेस लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट जनरेशन में जा ही नहीं रहा। डिफरेंस होता है स्टेट लेस का और स्टेट फुल का। आपका जो स्टेट लेस होता है वो रूटर्स होते हैं, रूटर्स और स्विचेस ना वो स्टेटलेस होते हैं। इसका रीजन ये है, स्टेट फुल में फायरवॉल करता क्या है,
अगर फॉर एग्जांपल आपका पैकेट ट्रस्टेड नेटवर्क से लेट्स से इंटरनेट पे जा रहा है जो कि अनट्रस्टेड है, आपका फायरवॉल कीप्स अ ट्रैक ऑफ दैट सेशन। और जब जब पैकेट वापसी आता है फायरवॉल पे, लेट्स से आप गए गूगल के ऊपर, राइट, आप अपने पीसी से घर पे आप बैठे हुए, राइट, आपने जाके लिखा google.com, आपको जो पैकेट है आपकी पीसी से जाएगा वो। अगर आपके घर पे फायरवॉल लगी हुई है, राइट, आपका जो फायरवॉल है इट ट्रैक्स कि फॉर एग्जांपल मिस्टर मंसूर ये गूगल पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो सेशन है इट्स कमिंग फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस एंड इज गोइंग टू दिस आईपी एड्रेस। वो जो सेशन टेबल है वो मेंटेन करता है। जब पैकेट गूगल से वापसी आता है तो द फायरवॉल ऑलरेडी नोज कि ये सेशन यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, तो मैं वापसी का जो ट्रैफिक है आई एम गोइंग टू अलाउ दैट। रूटर के ऊपर कहानी डिफरेंट होती है। रूटर पे क्या होता है कि यू नीड टू अलाउ द ट्रैफिक आउटबाउंड और इनबाउंड, आपको दोनों अलाउ करना पड़ता है क्योंकि एसीएल वो स्टेटलेस होता है। अगर मैं रूटर पे ये कहता हूँ कि जितना भी ट्रैफिक कमिंग इनबाउंड, ठीक है, उसको आप डिनाई कर दें, लेकिन बाहर आप इस ट्रैफिक को जाने दें, तो आपका जो पैकेट है इट विल गेट फ्रॉम योर मशीन टू गूगल, लेकिन ऑन द वे बैक आपका जो रूटर है उसको ड्रॉप कर देगा। और स्विच भी एग्जैक्टली ये काम करेगा। तो स्विच और रूटर्स पे आपको एसीएल आउटपुट बनानी पड़ेगी और इनबाउंड भी बनानी पड़ेगी। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इट्स अ लॉट मोर वर्क। जनरेशन देखें अब फिर एक आजकल जो बड़ा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स का, और अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, नाउ वी यूज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। वो जो कॉन्सेप्ट था बेसिक फायरवॉल्स का, वो अब मार्केट में आई थिंक वो नहीं है, राइट। एंड द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेयर 3 और लेयर 4 यानी आईपी और टीसीपी चेक्स रन नहीं करते, बल्कि वो एप्लीकेशन लेयर, आपका जो हेडर होता है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप दोबारा गए गूगल के पास, ठीक है, जब आप लगते हैं ना google.com, तो आपके हेडर में वो इंफॉर्मेशन आती है, राइट। और वो जो हेडर होता है वो उसको भी चेक करता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, कहीं ये स्पूफिंग तो नहीं हो रही किसी पॉइंट पे। सेम आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस मैक एड्रेस स्पूफिंग ना बड़ा आसान होता है, वो कोई भी कर सकता है, राइट। तो उसमें और एडिशनल चेक्स होते हैं, और उसमें फिर एंटीवायरस भी होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर, उसमें एंटी स्पूफिंग भी होती है, उसमें आईडीएस आईपीएस इंटीग्रेटेड होते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे, अभी भी अगर आप उठा लें बुक्स उठा लें पुरानी फायरवॉल्स की, उसमें क्या होता है, नॉर्मली दे विल शो यू कि देयर इज अ सेपरेट फायरवॉल, सेपरेट आईडीएस आईपीएस, ठीक है, जो कि नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी टीम्स मैनेज करती हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है वो अब दैट्स क्वाइट आउटडेटेड। अब क्या होता है जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पेलो अल्टोस हैं, यू हैव योर चेक पॉइंट्स, ठीक है, और सिस्को फायर पावर, इनमें क्या होता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं दे हैव ऑल बीन इंटीग्रेटेड इन द सेम बॉक्स। तो लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल आपका पैकेट आता है बाहर से, तो नॉर्मली आपका फायरवॉल इट विल रन, वो चेक करेगा कि आईपी एड्रेस ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो सारे चेक करेगा, आरपीएफ चेक करेगा, ऑन टॉप ऑफ दैट वो चेक करेगा कि इसमें कहीं इस पैकेट के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है। तो ये जो सारे चेक्स है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स करता है। जो लेगेसी फायरवॉल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ जो टीसीपी आईपी जो आपका लेयर था वो चेक करता था। वो सिर्फ आपका आईपी चेक करेगा, डेस्टिनेशन चेक करेगा, ये अलाउ है कि नहीं है, टीसीपी है, यूडीपी है। एंड ऑन लेयर 4 जो लेगेसी फायरवॉल्स हैं दे यूज्ड टू स्टॉप, राइट। अब आपका फायरवॉल इट ओपन्स अप द पैकेट टू एन एक्सटेंट कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं और उस फायरवॉल के पास वो सर्टिफिकेट है अगर, राइट, तो वो इनफैक्ट इट विल एक्ट एज योर सोर्स। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ऑफिस में नॉर्मली क्या होता है ऑफिस नेटवर्क के अंदर, भी एक्चुअली आप एक सर्टिफिकेट फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं और एक सर्टिफिकेट आप जितनी भी यूजर मशीन्स होती हैं, ठीक है, उन पे इंस्टॉल करते हैं। तो जो भी ट्रैफिक आपके लैपटॉप से या यूजर से या सर्वर से इट गोस आउटबाउंड टुवर्ड्स द इंटरनेट, ठीक है, योर फायरवॉल उस पैकेट को डिक्रिप्ट करता है, उसमें अपना सर्टिफिकेट डालता है एंड देन इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन फर्दर ऑन। तो इट एक्ट्स एज अ सोर्स। तो अगर कोई भी अटैक होगा वो फायरवॉल मैनेज करेगा, वो डायरेक्ट मशीन पे नहीं होता। लेकिन ये थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसमें ये आई थिंक आई कवर दिस प्रॉपर्ली ऑन अ व्हाइट बोर्ड। तो दिस इज द बेसिक्स, ठीक है, ऑफ अ फायरवॉल।
फायरवॉल नॉर्मली आप जो एंड पैरामीटर होता है उस पर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्म, फायरवॉल्स आप नॉर्मली इंटरनल नेटवर्क के अंदर भी इंस्टॉल करते हैं, राइट। और जो इंटरनल नेटवर्क है उसमें क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, जैसे आपका अगर एचआर हो गया, कोई रिसर्च होगी, कोई डिवीजन हो गया, राइट। उसको आप ना यू यू ट्राई टू कीप द ट्रैफिक कंप्लीटली सेपरेट। अगर फॉर एग्जांपल कोई, जैसे आई वाज वर्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। उनमें क्या होता है कि उनकी बहुत सारे कंप्लायंस की चीजें होती हैं जो कि हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। यू नीड सर्टिफाइड परमिशंस, ठीक है, ताकि आप उनको एक्सेस करें। हर टीम की और कंप्लायंस की, जितनी भी देखें, जितना आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं इतनी रेगुलेशंस इतनी स्ट्रांग होती है और कंप्लायंस इतनी स्ट्रांग होती है। तो उसमें क्या होता है कि हर इंसान का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लीस्ट एक्सेस प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट होता है, कि बंदे के पास सिर्फ इतना एक्सेस हो जितनी रिक्वायरमेंट हो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। और फिर हर हर महीने, 2 महीने, 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन विच बैंक यू वर्क फॉर, दे गो थ्रू का ना प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, जो कि द मैनेजर नॉर्मली साइंस ऑफ कि मेरी जो टीम के पास आपका दे हैव द करेक्ट एक्सेस, या उनका ज्यादा एक्सेस है, उसको आपका रिवर्ट किया जाए। तो वो पूरे जो प्रोसेस है ना, दे ऑल गो थ्रू। और उन पॉइंट पे आपका जो फायरवॉल्स हैं, दे आर क्रूशियल बिकॉज दे आर लाइक द सेंटर पॉइंट, जो कि डिफाइन करते हैं कि सर्टेन रिसोर्सेज, कि अगर अगर फॉर एग्जांपल एक सर्वर पे डेटा है, या किसी सैन पे या वी सैन पे डेटा है, राइट, वो नॉर्मली विल सिट बिहाइंड अ फायरवॉल, राइट। और वो फायरवॉल पे डिफाइन करते हैं कि कौन सा यूजर कितनी एक्सेस कर सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कि आप आईपी लेवल पे डिफाइन करते हैं कि कौन सा यूजर कहाँ एक्सेस कर सकता है, ये भी थोड़ा आउटडेटेड है, क्योंकि आजकल वो सारे इंफॉर्मेशन ना आपकी या तो एडी से होता है, कि आपका कौन सा डोमेन नेम है, या एट द सेम टाइम आपका ईआईडी, या कोई भी आईडी आप यूज करते हैं, ठीक है, वो उस पर होता है, क्योंकि आईपी आपका चेंज होता रहता है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपना लैपटॉप एक स्विच से निकाल के आप किसी और स्विच पे चले जाएं, किसी और फ्लोर पे चले जाएं, देयर इज अ हाई चांस कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो भी चेंज होगा, राइट। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम आईपी पे अलाउ करेंगे, वो भी आउटडेटेड है। और सेकेंडली, अभी एक और कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री में, जो कि मतलब इट्स फॉर इंटरनल नेटवर्क, इट्स कॉल्ड माइक्रो सेगमेंटेशन। जितनी भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, दिस इज एक्चुअली ऑन एप्लीकेशन लेयर। तो फिर यू हैव अ फ्लैट नेटवर्क, ठीक है, और सारा का माइक्रो सेगमेंटेशन होता है, लेकिन दैट्स अ मच मच बिगर टॉपिक। वो आजकल इंडस्ट्री में ना डिप्लॉय हो रहा है। नाउ ये तो हो गया फायरवॉल्स। आई थिंक आई ओनली हैव 3 more minutes, so I'll jump on the VPNs. VPNs in a nutshell is nothing but a secure way to transfer data from one point to another, ठीक है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप सिर्फ इसके मीनिंग देखें ना वीपीएन के, इट्स नथिंग बट अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आईपी सेक वीपीएन, आईपी सिक्योरिटी वीपीएन, राइट। वो क्या होता है, देन आपका जो पैकेट, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आपने मिस्टर मंसूर को आपने डेटा भेजना है, ठीक है, वही वही मैं मिसाल लेके चल रहा हूँ अपने अपने नेटवर्क से, अपने घर से। तो उसके दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने हाथ में, ठीक है, लिफाफा लेके आप मंसूर साहब को चले जाएं, कि बीच में किसी ने लिफाफा आपसे छीन लिया या देख लिया, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसे पेज आप लेके जा रहे हैं, एंड द पेज इज कंप्लीटली रीडेबल, ठीक है, अपने हाथ में पूरा जो खत है, वो है स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसफर, जो कि नॉर्मली इंटरनेट पे होता है। जब आप जाते हैं, आप लिखते हैं google.com, ठीक है, तो आपको जो डेटा जा रहा होता है, इट्स एन ओपन टेक्स्ट, अनलेस वो सिक्योर हो। आजकल मेजोरिटी वेबसाइट्स, वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ देम वो सिक्योर होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपका जितना भी टेक्स्ट जा रहा है इंटरनेट पे, दैट्स ऑल ओपन। अगर बीच में फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना लैपटॉप, अगर मैं आपका सारा ट्रैफिक स्निफ कर लूं, तो आई कैन एक्चुअली रीड योर ट्रैफिक, ये ट्रैफिक में क्या हो रहा है। और यही रीजन कहते हैं कि जब आप किसी कैफे में कहीं बैठे होते हैं, तो बी एक्सट्रीमली कॉशियस, कि आप उस वाईफाई पे, जो कैफे का वाईफाई जब उसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप क्या डेटा सेंड कर रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कैफे के अंदर बैठे हुए हैं, तो उसमें बैंकिंग ना करें तो बेहतर है। इवन तो बैंकिंग जो वेबसाइट है, इट इज HTTPS, ठीक है, SSL होता है, SSL सिक्योर होता है। लेकिन फिर भी जब इनिशियली आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दे दे आर पार्ट्स वेयर उसमें आपका रीडिंग के चांसेस होते हैं। तो नाउ गोइंग बैक टू द VPN, VPN में क्या होता है, आपकी साइट ए, जैसे लेट्स से आपके घर पे एक डिवाइस होगी, एक मंसूर साहब के घर पे डिवाइस होगी,
वो डिवाइसेस आपस में they will speak to each other and they will create a secure tunnel. और secure tunnel, it's simply encryption and hashing. जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जब डिफरेंट I'm talking about, for example, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, ठीक है, जो या उससे पहले चले जाएं आप जापान के अंदर, इन द ओल्डन टाइम, इन द ओल्डन सेंचुरीज, वो इंक्रिप्शन कॉन्सेप्ट, वो खत लिखते थे, राइट, दे यूज्ड टू यूज सर्टेन रोलर्स, और उसको ना थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन की बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, राइट, अगर एक सिंपल लाइन है, दिस इज अ कार, अगर उनके जो कैरेक्टर्स है आप उन सबको आगे पीछे कर दें, और दूसरी एंड में बंदे को या बंदी को पता हो कि उन कैरेक्टर्स को मैंने किस तरह जो है मैंने दोबारा उनकी जो अरेंजमेंट वो करनी है, तो आई कैन गेट बैक टू द सेम मैसेज, दिस इज अ कार, ठीक है। इंक्रिप्शन कुछ भी नहीं है, इंक्रिप्शन इज स्क्रैम्बलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। हैशिंग इज सिंपली स्क्रैम्बलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है, वो स्क्रैम्बल करता है। और इंक्रिप्शन क्या होता है, आप साथ में एक की अटैच करते हैं, ठीक है, और फिर आप स्क्रैम्बल करते हैं, तो वो उसको रिट्रीव करना अनलेस अनटिल आपका उसको की हो, इम्पॉसिबल हो जाता है। ये वही कहानी है कि दिस इज अ कार के साथ मैं एक और जुमला लगा दूं और फिर सबको मैं स्क्रैम्बल कर दूं, तो जबकि पास आपके पास वो की नहीं होगी, आप उल्टी सीधे जुमले बनाते रहेंगे, लेकिन आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनिशियल जो कॉन्सेप्ट था बस हैशिंग, उसके बाद ना इंक्रिप्शन वाज इन लेटर ऑन। अब इंक्रिप्शन के अंदर भी एक गौर करें, जो इंक्रिप्शन में आपका एएस ट्रिपल डैश था, फिर एएस आया, फिर एएस 128 आया, फिर एएस 256 आया, तो वो कर क्या रहे हैं, दे मेकिंग द की लॉन्गर, ताकि आपका जब इंक्रिप्ट हो जाता है, आपका ट्रैफिक रिट्रीव करना अनलेस अनटिल आपका जो इंक्रिप्शन की हो, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ठीक है, तब तो आप कर लें। अगर आपके पास, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग करता है, गोस थ्रू अ नंबर ऑफ रिलेशंस, वो जितने भी दुनिया में आप सोच सकते हैं अल्फाज या लेटर्स, इट विल गो थ्रू एवरीथिंग। अ नॉर्मल सीपीयू वो भी काम करने में 6-8 महीने लगाएगा, तब तक वो बंदा 6 दफा की चेंज कर चुका होगा। और यही रीजन है कि एट द मोमेंट द वर्ल्ड इज अफ्रेड कि जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा तो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को क्या होगा। अगर यही चीज हैकर्स के पास हो और आपके पास ना हो, तो उनके लिए आपकी कीज ब्रेक करना काफी आसान होगा। तो गोइंग बैक टू वीपीएन्स, ठीक है, तो वीपीएन करता क्या है, इन शॉर्ट, आपस में जो दो डिवाइसेस हैं, दे एग्री ऑन अ की, ठीक है, और जो इंक्रिप्शन की है, अब एक होती है उसमें पब्लिक और एक प्राइवेट की होती है। I'll go through the details, मुझे I'm sorry I need to leave in a minute, लेकिन ये कि जो पब्लिक की होती है, वो आप पब्लिक होती है, वो किसी को मिल भी जाए तब भी आपका डेटा डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको दोनों की चाहिए होती है। तो इन शॉर्ट, इन नटशेल, जब दूसरे एंड पे ट्रैफिक जाता है, वो उसको डिक्रिप्ट करके, हैशिंग एल्गोरिथम यूज करके, उसके बाद फिर वो आपको डेटा इट गिव्स यू इन रीडेबल फॉर्मेट। Thank you so much for joining us or giving us some valuable insights from industry point of view. और I understand कि थोड़ा सा ये था कि you cannot use the whiteboard and you don't have the slides prepared and everything, but still you have gone through a lot of information in terms of giving the examples and the scenarios, which is quite understandable. But yeah, definitely we would seek you to come back and give us a proper sort of in a teaching environment. And then it will have been easier for the guys to kind of digest the information and everything. So once again, thank you so much, and we'll catch you up later, basically. And also from the firewall point of view, next generation firewalls, obviously that includes IPS, IDS systems, and it not only detect the threats, but also it it mitigates those threats in terms of that it prevents those threats, right? So with the help of the signatures, one thing which has not been mentioned, that is the signature along with the rules, firewall rules के साथ signatures भी उसमें ऐड किए जाते हैं। और signatures क्या होते हैं, basically signatures वो होते हैं कि known vulnerabilities होती हैं, basically that is been fed into those firewalls, और वो उसको या तो directly they can access the vulnerability databases and then they can figure out, yes, this is the vulnerability, and they got to block that sort of a traffic coming in through, और जो भी attacks वगैरह known attacks जो होते हैं basically उसका जो database होता है, and then they kind of prevent that of a traffic to come inside. अच्छा, going back
के फायरवॉल्स, और बेसिकली आज का लेक्चर जो था ना वो यही था कि फायरवॉल्स और वीपीएन्स क्या होते हैं, एंड उसमें ये था कि द टूल्स वर्क टुगेदर, ये दोनों जो हैं एक साथ किस तरह काम करते हैं बेसिकली टू एनहांस द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पोस्चर को एनहांस करने के लिए। फिर इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोथ ऑफ देम would really helps in sort of a setting up the systems, या कह लें कि अटैक वेक्टर्स को comprehend करने में। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि फायरवॉल्स, फिर उसकी टाइप्स जो हैं थोड़ी सी हमने उसको देखा है कि फायरवॉल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वेदर इट वुड बी स्टेटफुल या फिर स्टेटलेस फायरवॉल्स हैं। इसके साथ हमने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स को भी थोड़ा देखा। एक चीज जो है वो प्रॉक्सी फायरवॉल बेसिकली विच हैज बीन स्किप्ड। तो प्रॉक्सी फायरवॉल ये होती है कि ये इंटरसेप्ट भी करती है, इंस्पेक्ट भी करती है बिफोर फॉरवर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, राइट? सो यू सेंड अ पैकेट एंड देन इट वुड गो थ्रू दैट फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल्स के थ्रू, और फिर वो उसको इंटरसेप्ट और इंस्पेक्ट, ये दोनों काम करेगी बिफोर इट फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन। सो पैकेट फिल्टरिंग में भी क्या हो रहा है कि पैकेट फिल्टरिंग में उसको पूरे पैकेट को एनालाइज करेगी, अलाउ और डिनाई रूल्स अप्लाई करेगी उसके ऊपर, और फिर उसको जो भी प्री डिफाइंड आप उसमें रूल्स आपने दिए होंगे उसको एनालाइज करके उसको उसके ऊपर अप्लाई करके, एंड देन इट फॉरवर्ड्स द पैकेट्स। और stateful, as you know, that stateful firewalls basically they monitor the state of the active connection and make decisions based on the context of the traffic। एक फॉर एग्जांपल अभी गूगल की एग्जांपल उन्होंने दी थी कि गूगल के पास जाता है पैकेट, उसके बाद तो ये लर्निंग स्टेज में होती है। जो स्टेटफुल फायरवॉल है, इट कीप्स ऑन लर्निंग द न्यू सॉर्ट ऑफ रूट्स, और उसके जो एड्रेसेस अपने मैक टेबल में वो डाल रही होती है, अब उसको अपडेट करती रहती है, और ये बड़े मिली सेकेंड्स का प्रोसेस होता है। इट डजंट टेक लाइक के जी चला है फिर काफी देर बाद आया है एंड ऑल दैट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिली सेकेंड्स में इट एन ऑटोमेटेड प्रोसेस एंड कीप्स ऑन अपडेटिंग स्टेबल्स, और उसके अकॉर्डिंगली इट मेक्स डिसीजंस कि जी अगर एक पैकेट गलत जगह से आ रहा है, इट हैज टू बी फ्रॉम दैट google.com, बट somebody sniffs along the way, और वो उसको मैक एड्रेस को चेंज करता है या आईपी एड्रेस को चेंज करके, तो वो उसको पिक कर लेती है वहां पे। ठीक है, स्टेटफुल फायरवॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट। सो ये हार्डवेयर भी हो सकती है उसमें, डिवाइस में जो कंपनीज में लगता है वो ज्यादातर हार्डवेयर डिवाइसेस होती है, प्रॉपर पालो अल्टो की होती हैं। उसके अंदर चेक पॉइंट की फायरवॉल्स बहुत, इनके आईपीएस बहुत स्ट्रांग है। और फिर इसके अलावा सिस्को की हैं। सिस्को जो है, there was a time when it has like 80% ऑफ द मार्केट शेयर, सिस्को की ज्यादा डिवाइसेस सिस्को की थी। ठीक है, तो बट नाउ द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आर ऑब्वियसली वो फिर ये चेक पॉइंट वगैरह, पालो ऑल्टो, एंड दे आर क्वाइट कॉमन नाउअडेज। तो ये हार्डवेयर में आ जाती है। सॉफ्टवेयर में जो आपने देखी होंगी, जो आपके सिस्टम में फॉर एग्जांपल जी विंडो की फायरवॉल हो, अच्छा जी, जो यूजलेस आई वुड से, तो वो कोई मैटर नहीं करती अनलेस अदरवाइज कि आपने उसमें भी एडवांस वाली ली हुई है, नॉट अ फ्री वर्जन, आप उनको पेड वर्जन यूज कर रहे हो, तो दैट वुड मेक अ बिट सेंस रादर देन गेटिंग समथिंग व्हिच इज स्पेशली। नेवर एवर यूज द पायरेटेड वंस, बिकॉज जब आप वो ही पायरेट करके यूज कर रहे हो, तो वो आपको क्या प्रोटेक्ट करेगी, वो क्या कौन सी प्रोटेक्शन आपको, क्योंकि उसके सिग्नेचर्स अपडेट नहीं होंगे उसके अंदर, वो जो लेटेस्ट थ्रेड्स का कोई वो कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, तो वो डेफिनेटली इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू। तो देयर इज नो पॉइंट हैविंग दो सॉर्ट ऑफ फायरवॉल्स। ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो yeah, so it can be hardware, it can be a software unit that filters incoming and outgoing traffic within a private network according to a set of rules to spot and prevent cyber attacks। क्या काम होता है मेजर इनका? तो स्पॉट एंड प्रिवेंट, और प्रिवेंट सिर्फ वही कर सकती है जो लेटेस्ट फायरवॉल है, नेक्स्ट जेन आईपी एड्रेस, आईपीएस जो है वो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स जो है उनके अंदर बिल्ट इन होते हैं, उनके अंदर सिग्नेचर्स अपडेटेड होते रहते हैं। ठीक है, अलोंग विद द रूल्स। तो ये कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रा उनके अंदर होती हैं, और इनका मेन मकसद क्या है कि फिल्टर करना है ट्रैफिक को, जो इनकमिंग है, जो अंदर ट्रैफिक आ रही है, और जो आउटगोइंग ट्रैफिक है, जो आपके नेटवर्क से ट्रैफिक बाहर जा रही है। ठीक है, वेदर इज योर होम नेटवर्क और एन ऑफिस नेटवर्क, डजेंट मैटर, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, होम नेटवर्क की इसलिए एग्जांपल दी जाती है बिकॉज आप होम में यूजुअली ये यूज कर रहे हो, आपके पास राउटर पड़ा हुआ है, उसके साथ काफी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, और जहां तक बात रही कि द क्वेश्चन वाज कि जी राउटर एज अ फायरवॉल, तो दैट डजंट मेक सेंस। राउटर वो फायरवॉल कैपेबिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर, स्पेशली होम राउटर्स की बात कर रहे हो, तो इट वुड नेवर एवर वर्क एज अ फायरवॉल, बिकॉज उसके अंदर इंतहाई लिमिटेड कैपेबिलिटी है इस चीज की कि वो ठीक है आउट जो
इनकमिंग ट्रैफिक को तो वो रोक रहा है कि, लेकिन आउटगोइंग को वो नहीं रोक रहा, और उसमें भी वो सेंस नहीं है कि वो विच ट्रैफिक टू ब्लॉक, विच ट्रैफिक नॉट टू ब्लॉक एंड ऑल दैट। बाकी ये है कि well, that's why we have given the home sort of home network example, कि उसकी ये मेन वजह यही है कि we can better understand that। अच्छा, तो फायरवॉल्स में इंटरनल फायरवॉल्स जो होती हैं वो विद इन द नेटवर्क यूज की जाती हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरनल रिसोर्सेज। ठीक है, आपके इंटरनल रिसोर्सेज क्या क्या होंगे? आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके प्रिंटर्स, आपके जो हैं वो सर्वर्स हैं, आपके पास राउटर, स्विचेस, एंड देयर सो मेनी अदर नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। तो ऑल दी सॉर्ट ऑफ इंटरनल नेटवर्क डिवाइसेस और सेगमेंट्स को क्या कर रहा है? इंटरनल फायरवॉल प्रोटेक्ट कर रहा है। एक क्लाउड फायरवॉल भी होती है, ठीक है, बिकॉज वी आर मूविंग क्विकली टू क्लाउड, and a lot of organizations they jumped onto cloud already, migrate कर गई हैं। तो cloud concept जो है और फिर cloud security prevail की है उसी तरह, तो वो क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज को स्पेसिफिकली उस तरह उनको बनाया जाता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी रखी जाती है कि क्लाउड रिसोर्सेज को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। क्लाउड रिसोर्सेज आर सेपरेट देन ऑन प्रेमिसेस के, जो आपने एक सर्वर ये रखा हुआ है रैक में, तो क्लाउड में इट वुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, आपने अपने नेटवर्क के बीच में फायरवॉल लगा दी है या उसके बाहर लगा दी है फायरवॉल के सर्वर तक अप्रोच या आपके रिसोर्स तक अप्रोच ना कर सके मैलिशियस ट्रैफिक, बट क्लाउड में क्या होता है कि यू यू गॉट टू पुट द नॉट द फिजिकल वंस, आपको वहां पर फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ अजूर क्लाउड, राइट? अजूर में आपको फायरवॉल्स की बिल्ट इन कैपेबिलिटी, जब दे यू सब्सक्राइब टू अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अजूर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, तो आपको वो क्या देता है साथ में? ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं, उसकी सिक्योरिटी के अंदर उसकी फायरवॉल्स हैं, उसके वीपीएन हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ऑल दैट अदर चीजें, उसके अप्लायंसेस वो साथ में देता है। दे माइट हैव अ फिजिकल फायरवॉल वर्किंग behind the scenes, लेकिन आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लाउड पे जाके आपको पोर्टल की एक्सेस दे दी जाती है, जहाँ पे आप अपनी सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करते हो और वहाँ पे ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो इजीली। एंड देन इट कम्स डाउन टू कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है काफ़ी सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बिटवीन द क्राइटेरिया एंड फायरवॉल फिल्टरिंग पॉलिसी रूल्स। तो द क्राइटेरिया ऑन ईच टैब हैव देयर ओन सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, इसको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे फायरवॉल की, कोई ओपन सोर्स फायरवॉल लेके उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग चेक करेंगे, तो देन दीज थिंग्स वुड बी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम, और ये क्वाइट यूजफुल जो होंगे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हम यूज करेंगे। और फिर एक टैब उसके अंदर जो होगी वो कुछ रिलेशनशिप्स को डेवलप करेगी कि हु, वेयर एंड व्हेन, यानी कि आपने किसको अलाउ करना है, कहाँ से डेस्टिनेशन, और जो सोर्स आईपी एड्रेसेस एंड द पोर्ट्स कौन कौन सी जो हैं वो आप अलाउ करोगे, एंड व्हेन। ठीक है, तो जिसमें के यूजर्स भी आ सकते हैं, ग्रुप्स भी आ सकते हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स भी आ सकते हैं, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि सेग्रीगेट किया जाता है, नेटवर्क को सेग्रीगेट किया जाता है इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ के, आपको जिसका जितना प्रिविलेज होगा वो उतना ही एक्सेस कर सकेगा, सबको हाई लेवल एक्सेस नहीं दे दी जाती। उसकी रीजन होते हैं, उसके रीजंस मेनली रीजन यही होता है कि ऑपरेटर क्या होते हैं बेसिकली, ये लॉजिकल वर्कफ्लोज होते हैं आपके। ठीक है, फॉर एग्जांपल और है, एंड है, ठीक है, लेस देन है, मोर देन है, दीज आर वी कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स इसमें हम किस में यूज कर रहे हैं? जो आपके आईपी, जो आपके रूल सेट्स हैं फायरवॉल्स के जब रूल सेट्स हम बनाते हैं तो उसमें ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर सोर्स आईपी भी देना होता है ऑब्वियसली, वेदर इट वुड बी द, तो फायरवॉल बेसिकली हम लोग जब कोई थ्रेट या कोई अटैक को हम लोग देखते हैं अराउंड द लेसन लर्न फेज, या कुछ ऐसा मसला होता है, तो हम फायरवॉल लॉग्स को भी चेक करते हैं, और इसकी जो है उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन भी आती है। फॉर एग्जांपल, वी डिस्कवर सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटीज दैट कुड इंडिकेट malicious threat actors breaching network and can help greatly improve an organization's firewall effectiveness. तो वी गेट अ वेरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन
कि उससे ना सिर्फ कि हम फर्दर कंप्रीहेंड कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको फर्दर फायरवॉल को इफेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है। और ये कंटिन्यूस ट्रेडिशनल फायरवॉल्स मतलब कई साल पीछे आप चले जाएं तो ये कैपेबिलिटीज नहीं होती थी, इजी था, बहुत इजी था बाईपास करना फायरवॉल को। तो सिंस द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स कम्स इन, तो वो उसके अंदर स्टेटफुल कैपेबिलिटी एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें जब मिली तो इट वुड बी डिफिकल्ट नाउ, राइट। तो वो क्या होता है कि इसी तरह सिक्योरिटी इवॉल्व होती है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इवॉल्व होती हैं, फिर इसके अलावा मैकेनिज्म्स डिवाइस होते हैं, मेथोडोलॉजीज, इस तरह की डिवाइसेस मार्केट में आना शुरू हो जाती है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली ये एक डिफरेंट मार्केट है, सिक्योरिटी सर्विस की डिफरेंट मार्केट है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केट है। ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स जो हैं आर बेसिकली दे रिसर्च a lot and then they figure out, okay, so this is what is required. So monitoring and logging is a continuous process. It always goes in a cycle. Then another product, then you start continuously monitoring it and improving it at the same time. VPN की बात की, जहां फायरवॉल की बात हो वहां VPN, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी कंबाइन दीज टू टॉपिक्स, बिकॉज दोनों का बहुत रेलेवेंस है आपस में। तो रिमोट एक्सेस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। If I want to kind of communicate with my server which is another place or another region, कहीं मैं उसको रिमोट एक्सेस करता हूँ, ठीक है, SSH करता हूँ, एंड क्या होता है कि if I usually that is protected, obviously that the traffic is encrypted, more secure sort of connection I'm establishing. But just in case, if I want to get a VPN, that would have been another layer of security on top of it. क्योंकि इसमें ट्रैफिक एनक्रिप्टेड होती है, एक टनल डेवलप हो जाती है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है आपका, दैट इज मोर सिक्योर, और रिमोट एक्सेस को इजी कर देता है आपकी, कि आप कॉन्फिडेंस के साथ रिमोट एक्सेस या ट्रांसमिशन अपनी कर सकते हो। और डिफरेंट तरह की हैं, ओपन भी हैं, फिर इसमें डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ब्राउजर्स आपको डिफरेंट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सेसिंग अ डार्क नेट, और वो द VPN इज अ मस्ट इन दैट, इन टर्म्स ऑफ योर anonymity एंड ऑल दैट, तो वो बहुत जरूरी चीज बन जाती है। उस वी डोंट रियली केयर अबाउट आवर प्राइवेसी, तो हमें वो, या तो हम इतना उसको बॉदर नहीं करते हैं यूजुअली, बट क्या है कि करना चाहिए, एंड यू शुड बी क्वाइट you know strict towards basically about your privacy or private information. तो उसके लिए you must have a VPN for that. Virtual private network creates a secure encrypted connection over a less secure network such as an internet. Internet हमारा बहुत ही less secure है, ठीक है। Obviously all the threats are coming or developing as the network devices grows. तो internet जितना जितना फैलता जा रहा है उतने ही threats और उतनी ही थ्रेट वेक्टर्स, जिसे थ्रेट टेक्निक्स भी कहते हैं, क्रिएट होते चले जा रहे हैं। तो ये, तो उसके साथ साथ आपको क्या है कि आपको इस इतने ही लेस सिक्योर कनेक्शन पे, डू यू थिंक इफ यू आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट जॉब एंड वुड यू वुड अकोमोडेट कंप्रोमाइजिंग दैट, कि आपका वो सिक्योर कम्युनिकेशन, आप चाहोगे कि आपका वो सिक्योर कम्युनिकेशन इन इनसिक्योर नेटवर्क, इस इंटरनेट के इनसिक्योर इंटरनेट पे ब्रेक हो, या कोई चीज लीक आउट हो, या इस तरह का कुछ हो। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्ट ऑफ द countries or governments, or in the world of journalism, or in the world of cyber criminals, so this is the most important sort of a technology. Okay, VPN plays very important role. VPN may there are like about 4 VPNs that's on my slide right now: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard. Point to point tunneling protocol, less secure, very less secure, I would say, ठीक है। और फिर एक होता है IPsec, as Fazan has mentioned in that कि जी IPsec लेयर वो आपको दे देते हैं, तो IP सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी जाती है। बेसिकली जो पैकेट्स हैं आपके वो इनक्रिप्ट कर दिए जाते हैं, उसमें एक तो टनल दे दी, ऊपर से पैकेट भी इनक्रिप्ट है, और ऊपर से वो टनलिंग प्रोसेस भी पूरा इनक्रिप्टेड है। तो डबल सॉर्ट ऑफ layer 2 tunneling protocol with IPsec. OpenVPN is basically an open source VPN protocol, ठीक है, that we will do maybe inshallah next in जो लैब शैब में हम इसको कर लेते हैं। ओपन VPN को किसे कॉन्फ़िगर करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। वायरगार्ड है a modern high performance VPN protocol, ठीक है। So that are the types of different VPNs, right? But one way or another, these are just for the study purposes, ठीक है।
क्योंकि इसमें जो है ये we're not gonna, especially with this one, show that is insecure, so we're gonna focus on the WireGuard and OpenVPN. So yeah, so these are the kind of VPN types. And maybe move on further. So benefits of VPN, as we all know, that it provides basic encryption and the security and the tunneling process. Privacy maintains masks your IP addresses to maintain user anonymity. Nobody will know wherever you are coming from. या आपका source IP क्या है, because जो है ये it origin जोन सा उस VPN का सर्वर होगा, जिस कंट्री को आप सेलेक्ट करोगे या जिस रीजन को, वो वहाँ का IP एड्रेस उसमें शो करेगा. That's why one of the reasons why I asked one of you guys कि जी आप कोई VPN तो नहीं यूज कर रहे हो, because there was a malicious IP address I figured out कि जी हमारे कोच की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था वो. तो that is from the region. That's why I asked, my first question was that are you using a VPN? So that is okay, completely fine. You can use it, but at least if we know that somebody is accessing, or unless otherwise somebody else is accessing your basically IP accessing that website. तो ये क्या होता है कि आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है. मास्किंग बेसिकली टू रिप्लेस, टू बेसिकली फ्रंट एंड पे आपको वो आईपी नजर आ रहा होगा, लेकिन बैक एंड पे ये हाइड आपका आपकी असल पहचान हाइड कर देता है, राइट. इफ इट्स नॉट बेसिकली ओके, सो दिस इज नॉट आसिफ, इज बेसिकली सम रैंडम गाय स्पीकिंग टू यू, राइट. But actually it's somebody changes my voice and start, but actually it's my voice, right? So you wouldn't know, right, whether it's Asif or not. और सिमिलरली जो है ये कंट्रीज के उसमें कि जी ये इस कंट्री से आप पाकिस्तान से कर रहे हो, बट पर्सन वुड नो नहीं जी ये तो अमेरिका से आ रहा है. इस तरह की जो है बेसिकली अनोनिमिटी आपको प्रोवाइड करता है. आप अनोनिमस एज अ सामने आते हो. यू वुड नॉट बी with your real ID. Remote access जो है आपको obviously it enables secure remote access to internal network resources. आपके जो internal network resources हैं, as I said, आपके servers, आपकी firewalls, printers, whatever attached to your internal network, वो सब जो है that would have been remotely accessed, but with a secure remote access, with a proper sort of encryption, with the proper sort of tunneling process in place. Yeah, common firewall VPS misconfigurations. अच्छा, जब ये सब चीजें लगा भी लेते हो, फिर कैसे आपके अटैक्स होते हैं? जब मतलब आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया अपने नेटवर्क को, कैन यू इमेजिन कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लगी हुई है भाई वहां पे, और उसमें भी आप फिर भी कहते हो यार ये फिर अटैक्स कैसे हो जाते हैं नेटवर्क्स पे? तो भाई वो कहीं ना कहीं तो देखो, सिक्योरिटी हमेशा हमेशा ना 100% नहीं रही है. कभी भी किसी भी वक्त में 100% सिक्योरिटी ना होगी ना रही है. उसके रीजंस है, बहुत सारे रीजन. सबसे बड़ा रीजन जो है, मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन. ह्यूमन इज द वीकेस्ट एलिमेंट. इनसे हम सिक्योरिटी में इसको क्या कहते हैं कि ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक. कि कहीं भी अगर 100% सिक्योरिटी आप कहते हो जी मुझे कोई ब्रेक नहीं कर, मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई आ भी नहीं सकता. सो यस ऑफ कोर्स, बट योर ओन पर्सनल वुड बेसिकली द वीकेस्ट पॉइंट देयर. वो जो है आपने उनको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी ट्रेन किया हुआ है. डिस्पाइट आप प्रॉपर्टी सिक्योरिटी ट्रेन भी कर लेते हो, अगर उसमें से आपके आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल दे वुड डू समथिंग नास्टी, तो फिर वही बात आ जाती है वहां पे. इसी तरह जब आप फायरवॉल्स और वीपीएन्स की कॉन्फ़िगरेशंस करते हो, करता कौन है? वो हम ही करते हैं ना. आफ्टर ऑल एआई को कौन रन कर रहा है? बंदे ही रन कर रहे हैं ना. बेसिकली एआई खा खा गई जी, जॉब चली गई, एआई तो ये हो गया वो हो गया. एआई को भी रन करने वाले हम लोग हैं. तो बेसिकली दैट वुड नेवर एवर बी रिप्लेस्ड. इसी तरह जो फायरवॉल की वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हो वो बंदे कर रहे हैं, और फिर उसमें वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इनकरेक्ट रूल सेटिंग्स भी हो जाती हैं. आउटडेटेड फर्मवेयर, जी आपने फर्मवेयर आया है उसको अपडेट ही नहीं किया. मैंने अभी क्या कहा था, सपोर्ट लाइन जब सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स फायरवॉल्स बना रही हैं, पालो अल्टो ने आपको कहा कि जी हमारी 2 साल की आपके साथ कमिटमेंट है, आपको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे 2 साल बाद. इफ यू we will not be responsible, or if you want to extend your service package, pay is this much and then we will give you the new product. ये firmware आपको दे देंगे, आप उसको अपडेट कर लें.
बेसिकली वो आउटडेटेड फर्मवेयर बड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ये सब चीजें। सिमिलरली यूके में बहुत बड़ा एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विस पे अटैक हुआ था, दे निकला गया था उसमें से दे वर बी यूजिंग आउटडेटेड विंडोज कि वो विंडोज पता नहीं कौन से जमाने की विंडोज लेके अभी तक चल रहे थे। सिंपल देखें, अटैक जब आप कर ये प्रिपेयर होते हैं अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सिंपल लूप होल देखते, कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। दे विल लुकिंग इनटू योर वल्नरेबिलिटीज। आपकी पहली जो चीज होती है एथिकल हैकिंग में, दैट इज योर फिंगरप्रिंटिंग एंड योर रिकॉनेसेंस। फिंगरप्रिंटिंग और फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जब वो सारी इकट्ठी करते हैं तो उसमें वो देख लेते हैं कि जी ये सिस्टम तो वर्नेबल है, इसके अंदर तो आउटडेटेड फर्मवेयर है इसके फायरवॉल का, लेट्स गो थ्रू द फायरवॉल। अच्छा इसकी तो रूल सेटिंग्स नहीं ठीक है, लेट्स गो तो इसकी तो विंडोज अपडेट नहीं है, विंडोज पुरानी, इसके अंदर ये अब विंडोज चेक किया जी, विंडोज उसमें वर्नेबिलिटी डेटाबेस में जाके अच्छा विंडोज की फलानी विंडो की कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज हैं, वो कहेगा जी अच्छा ये वन यहाँ से वो सारी वर्नेबिलिटी टेस्ट कर लो, कहीं ना कहीं से आपका जैकपॉट लग जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, वीक पासवर्ड जो हो, ये तो बहुत कॉमन है, आप अपने सिस्टम्स पे भी ये काम करते हो, ये गलतियां करते रहते हो यूजुअल। ठीक है, वीक पासवर्ड्स, वीक क्रेडेंशियल्स, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी कल आई वाज टेकिंग एथिकल क्लास और उसमें मैंने उनको शोडन पढ़ाया, तो शोडन में वो बेसिकली क्या है, अब मैंने सिर्फ इतना डाला है कि जी पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड मुझे डिवाइसेस दे दो भाई जिसके जिसके डिफॉल्ट पासवर्ड है। उसने मुझे कुछ 423 रिजल्ट, प्रिसाइजली 423 रिजल्ट्स निकाल के दिए यूएसए में, जो डिवाइसेस फिट हुई हुई हैं और वो नेटवर्किंग डिवाइसेस थी। उनके पासवर्ड क्या थे, एडमिन एंड पासवर्ड क्या, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड क्या था, पासवर्ड। मतलब ये बिकॉज द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कंप्लीटली फॉरगॉट टू बेसिकली चेंज इट। उसने वैसे लगाया और लगा, और द ईज ऑफ कन्वीनियंस के जी अगर हम चेंज करेंगे फिर कॉन्फ़िगरेशन भूल जाएंगे डिवाइस पे का, ये सब प्रॉब्लम्स पढ़ने के बजाय एडमिन पासवर्ड ही रख दो, ये डिस्कवरेबल हो जाती हैं। ठीक है, फिर लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। अब आप उसको, अभी मैंने क्या कहा था कि इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, इसकी लॉगिंग चेक करनी पड़ती है, यू कंटिन्यूसली बेसिकली लॉग्स, एक्सट्रैक्टिंग द लॉग्स आउट, पुटिंग द लॉग्स तो जा ही रहे होते हैं, खैर यू वुड बी एक्सट्रैक्टिंग द लॉग्स आउट टू स्टडी दोज लॉग्स के जी अगर ये लॉग एक बता रहा है तो व्हाट डज इट मीन, ये मैलिशियस ट्रैफिक आई है, आईपी एड्रेस नेट किया है, डू वी हैव द प्रॉपर सिक्योरिटी मैक्स, इसने ब्लॉक किया है कि नहीं किया, या इट लेट इट गो, वो सारी चीजें देखी जा रही होती हैं। तो आफ्टर ऑल मशीन है, मशीन कैन मेक मिस्टेक्स राइट, well is the other way around, but yes machine can make sense depending on your configurations, आपने इसको क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। improper VPN प्रोटोकॉल सिलेक्शन, अब वीपीएन के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, अगर उसमें आपने कोई प्रोटोकॉल गलत सेलेक्ट, जिस तरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैंने उस दिन पढ़ाए थे, HTTPS, डीएनएस और जो आपके सिंपल फाइल शेयर है, एफटीपी प्रोटोकॉल एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, टीसीपी आईपी एंड दी सॉर्ट, तो इसी तरह इसके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर वो मिसकॉन्फ़िगर हो जाए, राइट करेक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं चूज किया आपने, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फायरवॉल्स, ये तो वो वीपीएन्स की हमने बात की, ये फायरवॉल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जी, रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट फायरवॉल रूल्स, यूज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स, इंप्लीमेंट इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, मॉनिटर फायरवॉल लॉग्स एंड अलर्ट्स। सबसे पहला इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स उसमें यूज किए जाएं, राइट। सो अगर कोई एक्सेस करता है, ऑथेंटिकेट क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना बेसिकली ये होता है कि इफ आई वांट टू एक्सेस वन ऑफ द रिसोर्स, अगर मैं अपने सर्वर में जा रहा हूँ, सर्वर वुड ऑथेंटिकेट मी फर्स्ट वेदर इट्स मी और नॉट, और इट वुड बी समबडी एल्स, वो चाहे टोकन के जरिए हो या आपकी जो कर्बेरोस मेथड होता है सिंगल साइन ऑन के जरिए हो रहा हो, या फिर आपके पास कोई हार्डवेयर डिवाइस जिस तरह यूएसबी स्टिक मैंने प्लग की, दैट इज माई ऑथेंटिकेशन, उस पर फिंगरप्रिंट, या मैंने को कार्ड, बायोमेट्रिक कार्ड टच किया, पासवर्ड, दीज आर ऑल ऑथेंटिकेशन मेथड्स। अच्छा, जिस तरह अब आपने सुना होगा 2FA 3FA ये सारी चीजें, तो वो ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इवन ये यूजर नेम पासवर्ड, दीज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। फिर इम्प्लीमेंट ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, एक तो होता है आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एक तो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम विच इज ऑन टॉप ऑफ इट। इन डिटेक्शन सिर्फ डिटेक्ट करेगा, वो प्रिवेंट नहीं करेगा। जो प्रिवेंशन सिस्टम होगा, इट वुड डू द बोथ, डिटेक्ट कर रहा है
उसको आगे नहीं जाने देगा, डिटेक्ट करके आपको बता देगा, अलर्ट कर देगा, उसको आगे भी नहीं जाने देगा, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा उस पैकेट को, ठीक है। बल्कि अलर्ट्स इशू कर देगा, जो आपका सॉक एनालिस्ट पिक करेगा कि जी ओके यस, सो दिस इज अ थ्रेट कमिंग थ्रू दिस एंड दिस आईपी एड्रेस इज ब्लैकलिस्टेड कमिंग थ्रू अप्रोच थ्रू दम थ्रू वन ऑफ द फायरवॉल्स वी गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ अलर्ट। अब ये चीजें कौन है, ये आईपीएससी प्रोवाइड। आईडीएस होता तो उसने क्या करना था, डिटेक्ट तो कर लिया बट इट वुड नॉट ब्लॉक इट, लेट इट गो, कि ठीक है चल रही है ट्रैफिक, चलने दो, उसको रोको नहीं। सो प्रिवेंशन सिस्टम्स आर क्वाइट इंटेलिजेंट सिस्टम्स, बेसिकली वो सिग्नेचर देख लेते हैं, ये किसका सिग्नेचर है, ये फलाने अटैक का सिग्नेचर है। सिग्नेचर्स आर बेसिकली these are not like ordinary signatures। वो बेसिकली क्या होता है कि ये उसकी हाउ वुड आई एक्सप्लेन दैट, इसकी वो होती है कि आपको बता देता है कि ये थ्रेट है, एंड हर थ्रेट के अगेंस्ट एक सिग्नेचर फिट किया होता है उसके अंदर, जो डेटाबेस होता है। तो वो थ्रेट को वो ब्लॉक कर देगा वहीं पे, और उसको उड़ा देगा, वहां से पैकेट ड्रॉप कर देगा। अम, और फिर क्या होता है कि आपका मॉनिटर फायरवॉल लॉग्स एंड अलर्ट्स, आपको इसकी मॉनिटरिंग भी साथ साथ रखनी है। एंड देन कम्स डाउन टू बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वीपीएन। वीपीएन की भी सिमिलरली कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं सामने, और वो ये है कि स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज इस वीपीएन के अंदर इंक्रिप्शन यूज हो रही है, तो हमें स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स इसके अंदर रखने हैं। अब इंक्रिप्शन आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ पुराने मतलब वो हो चुकी है, और जिस तरह एईएस है, वेप है, डब्ल्यू ए पी है, डब्ल्यू ई पी है, तो अब जो है आपने लेटेस्ट एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल को यूज करना है, आपने पुराना वाला नहीं उठा के डाल देना। इफ यू वुड डू दैट देन इट वुड हैव बीन फ्लॉप, वहीं पे उसकी समझ लो कि खत्म, उसके उसका यूज ही खत्म हो गया ना, मतलब आपने उसके अंदर लूप होल छोड़ दिया है। रेगुलरली अपडेट वीपीएन सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको फिर अगेन अपडेट, टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट अपडेट्स। आप अपडेट करते रहोगे, चलते, जिस तरह मोबाइल फोन अपडेट होते हैं ना हर साल, हर 2 साल साल बाद एक नया फोन आया होता है, तो सिमिलरली दिस इज द टेक्नोलॉजी गेम, राइट, इट डज अपडेट इटसेल्फ। और उसमें क्या है, अगर आप नहीं करोगे एंड देन यू वुड बी सिक्योरिटीज, और आप, मैं फिर उसको सिक्योरिटी नहीं कहूंगा, ठीक है, दैट वुड बी समथिंग एल्स, कि आप ये छोटी छोटी चीजें इसमें होती हैं। सो इस साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी हाइजीन। सिक्योरिटी हाइजीन क्या होती है कि यू वुड बी clean, you would be up to date, you wouldn't be a mess of configuration, configurations में mess नहीं करना, configuration को simple and clean रखना है आपने, तो आप क्या होगे, you would be less prone to attacks करीब भी नहीं आएंगे आपके, if you follow these sort of good practices। फिर क्या है, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वीपीएन में रखनी है, वीपीएन एक्सेस जो है उसकी, whosoever has got that VPN access, do they have a multi-factor